राधे राधे बच्चों। आज मैं क्लास 2 के यूनिट 5 का लास्ट सेशन चला रही हूँ। इसके बाद आपका क्लास 2 का मृदंग का सारा समाप्त हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज क्लास 2 का मृदंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 1 का मृदंग कुछ छूट गया है टेक्स्ट बुक में, उसको मैं अपलोड करूँगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक ही मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। यहाँ है समथिंग न्यू। इसके बाद है सीन अ क्लासरूम सेटिंग students of class 2 enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. Anshika, hi, look at this, pointing at the object. Zoya, does it belong to our teacher? Rohan, but what is it? Tejas, it looks like a bicycle to me, but it has only one wheel. Bhavya, and it has no handle. Pamyu, there are no pedal as well. Simran, and it is made of wood. Bhavya, why is there a thread on it? Zoya, I do not know. Maybe we should ask the teacher. अब नेक्स्ट है they go round the table. They start looking at the object from all sides. Teacher enters. Everyone, Namaste teacher. Pamyu, pointing to the object. Man, what is this? Teacher, smilingly, do you know about Mahatma Gandhi? Do you know who he was? Zoya, man, Mahatma Gandhi is the father of the nation. Teacher, right. Gandhi ji led the Indian freedom movement. Anshika, Gandhi ji also gave the message of non-violence and peaceful exertion. Simran, pointing to the object on the table. But what about that? Teacher, pointing to the object on the table. This object was very dear to Mahatma Gandhi. It is called the चरखा और स्पाइनिंग व्हील, यानी इसको चरखा और स्पाइनिंग यानी इसको भी हम चरखा का इसका दूसरा नाम है। रोहन, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर मैन? टीचर, Mahatma Gandhi used it to spin thread. The teacher takes out handkerchief and shows it to the children. This is made of the thread that is spun on charkha. Mahatma Gandhi wanted to promote local handicraft and use
the charkha as a symbol for self-reliance and independence. Today, a guest will join us. He will show you how to spin the charkha. All children clap with joy. अब हम इसका उच्चारण आपको दिखाते हैं। आपको पढ़ने में यदि दिक्कत होती होगी तो आप उच्चारण के माध्यम से इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम इसको उच्चारण के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचा रहे हैं। इसको देखते हैं। यहाँ सेम जैसे मैं पढ़ी हूँ ठीक उसी का उच्चारण है। A classroom setting. Students of class 2 enter the classroom. There is an unfamiliar object on the teacher's table. Everyone is curious. Anshika, hi, look at this. Pointing at the object. Joya, does it belong to our teacher? Rohan, but what is it? Tejas, it looks like a bicycle to me, but it has only one wheel. यहाँ पर आधा ह है, आधा ह व पर बड़ी का मंत्र वी अल व्हील. भव्या, and it has no handle. Pamyu, there are no pedals as well. Bhavya, why is there a thread on it? Simran, and it is made of wood. Joya, I do not know. Maybe we should ask the teacher. They go around the table. अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. They start looking at the object from all sides. Teacher enters. Everyone, Namaste teacher. Pamyu, pointing to the object. Ma'am, what is this? Teacher, smilingly. Do you know about Mahatma Gandhi? Do you know who he was? Joya, ma'am, Mahatma Gandhi is the father of the nation. Teacher, right. Gandhiji lead the Indian freedom movement. Anshika, Gandhiji also gave the message, यहाँ पर मैसेज है, मैसेज ऑफ नॉन वायोलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस. अब नेक्स्ट में है सिमरन, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल. दिस ऑब्जेक्ट वाज वेरी डियर टू महात्मा गांधी. इट इज कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील. रोहन, व्हाट इज इट यूज फॉर? मैम. टीचर, महात्मा गांधी यूज इट टू स्पिन थ्रेड. द टीचर टेक्स आउट handkerchief and show it to the children. यहाँ टीचर क्या बोल रही है? महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड. द टीचर टेक्स आउट हैंडकरचीफ एंड शो इट टू द चिल्ड्रेन. अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. यहाँ है, दिस इज मेड ऑफ द थ्रेड that is spoon on charkha. Mahatma Gandhi wanted to promote local handicraft and
used the charkha as a symbol for self-reliance and independence. Today, a guest will join us. He will show you how to spin the charkha. अब हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम पहले इसको भर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। कह रहा है मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। ये हमारा यहाँ फल है और यहाँ फल के ट्री दिए हुए हैं। अब हमको फल के अनुसार ट्री के साथ मिलाना है। हमारा यहाँ पर बनाना है, तो हम देखते हैं कि बनाना का ट्री कौन सा है। तो ये है बनाना ट्री। तो हम बनाना ट्री को बनाना ट्री के साथ यहाँ मिला देते हैं बच्चों। इस तरह से मिला देना है। इसके बाद कोकोनट है। तब कोकोनट हमारा इसमें से कौन सा है बच्चों? यहाँ पर हमारा कोकोनट ये है। तो हम कोकोनट के साथ कोकोनट ट्री को मिला देंगे। इसके बाद हमारा एप्पल आ गया। अब एप्पल के साथ हम देखते हैं एप्पल ट्री यहाँ लिखा है। तो हम इस एप्पल को एप्पल ट्री के साथ मैच करा देंगे। इसके बाद हमारा ग्रेप्स बचा है। अब ग्रेप्स के साथ यहाँ ग्रेप्स देखते हैं ग्रेप्स कहाँ है। तो यहाँ ग्रेप्स यहाँ पर दिया है। यहाँ हम ग्रेप्स के साथ इसको मिला देंगे। अब हमारा बचा है मैंगो। तो मैंगो ट्री यहाँ दिख रहा है। तो हम मैंगो ट्री को इसके साथ मैच करा देंगे। ये हमारा मैंगो ट्री कंप्लीट हो गया। जब हमारा मैंगो ट्री कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज पर है फूल देई फेस्टिवल। ये जो फूल देई फेस्टिवल है इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये फूल देई फेस्टिवल कहाँ, कब और किस लिए मनाया जाता है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग. Children collect different kinds of flowers. They go to the houses near their home. They offer flowers to the elders. Sometimes they keep the flowers on the doorstep. The elders give them rice and जैगरी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो फूल देई फेस्टिवल है यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह बसंत के आगमन का त्योहार है। यह चैत महीने के संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन बच्चे फूल तोड़कर घरों की देहली पर रखते हैं। इस दिन घूंघा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन शरद ऋतु की विदाई की जाती है, यानी शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन पर इस जश्न को मनाया जाता है। बच्चे फूलों से सजाते हैं और चावल क्या करते हैं, चावल से भी अपने घरों को देवियों पर चावल और फूल से सजावट करते हैं। तो बच्चों इस तरह से फूल देई फेस्टिवल हमारा कहाँ का त्यौहार है। तो बच्चों याद रखना है उत्तराखंड का त्यौहार है। यह चैत महीने की संक्रांति को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत महीने की संक्रांति को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट त्यौहार देखते हैं क्या है। नेक्स्ट त्यौहार है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में भी फिर हम बताएंगे। शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट. It is celebrated in the month of Ashwin.
आश्विन कब होता है? सितंबर या अक्टूबर में। द वेदर इज जनरली प्लीजेंट। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। अब हम इसको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा कब मनाया जाता है। तो बच्चों, शरद पूर्णिमा आश्विन यानी कुआर के महीने में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को होता है। इसका नाम ही है शरद पूर्णिमा। इस पूर्णिमा में जो है चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी ये 16 कलाएं पूरा गोल दिखाई देगा, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत झरता है। चंद्रमा के किरणों से क्या झरता है? अमृत झरता है। इसलिए लोग इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखते हैं। देखो, ये महिला भी खीर बना करके ये चांदनी रात में रखी है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है और भक्तों को धन्य धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इस दिन चंद्रमा को देखने से आँखों की जो रोशनी होती है वो तेज होती है। बच्चों, इस तरह से आपको शरद पूर्णिमा की जानकारी मिली। शरद पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो कुआर महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसको आश्विन भी कहा जाता है संस्कृत में, और हिंदी में कुआर बोला जाता है। और यदि इंग्लिश का महीना आ जाए तो अक्टूबर होता है, सितंबर लास्ट और अक्टूबर के। इस तरह से हमें याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन सा त्योहार है। यहाँ है नेक्स्ट त्योहार में आदि पेरुक्कू। आदि पेरुक्कू जो है पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसके बारे में भी बताएंगे। आदि पेरुक्कू इज अ तमिल मानसून फेस्टिवल। It is celebrated in the आदि मंथ। मंथ कब होता है? जुलाई अगस्त। People worship the river कावेरी। Farmers pray for a good harvest। अब हम इसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में परिचय करा देते हैं। ये आदि पेरुक्कू जो त्योहार है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह तमिल मानसून फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं इस दिन अपने घरों से निकल करके जलाशयों पर, नदी के किनारे, यानी पानी के जीवन निर्वाह और गुणों की श्रद्धांजलि देने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। किसान लोग अपने अच्छे फसलों की प्रार्थना करते हैं और इसे पाधिनेट्टम या पेरुक्कू भी कहा जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के नदी कावेरी नदी के तट पर या कोई भी जलाशय हो, टैंक हो, झील हो, कुओं हो और सरोवर हो आदि जगहों पर ये मनाया जाता है। इस दिन लोग नदियों और झीलों के किनारे जाकर चावल के आटे और गुड़ से बना एक विशेष दीपक जलाते हैं। इस दिन महिलाएं, बच्चे शाम को जलाशयों पर जा कर के उनके पास दीपक जला करके आभार प्रकट करते हैं और अपने सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। ये भी महिलाएं जलाशय के पास दीपक जला रही है। बच्चों, यह त्योहार कहाँ का है? तो याद रखना तमिलनाडु का है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं त्योहार क्या है। नेक्स्ट त्योहार है पोंगल सोल। पोंगल सोल, ये पोंगल सोल इज फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर।
Empty Kanchenjunga in worshipped on this day. Empty यानी माउंट एवरेस्ट. Empty Kanchenjunga is considered as a protector by the worshippers. People dance and celebrated unity. अब ये जो त्योहार है ये हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय कर लेते हैं. ये पांग लाबसोल जो है ये सिक्किम का एक अनोखा त्योहार है. यह त्योहार सिक्किम के संरक्षक देवता माउंट एवरेस्ट को समर्पित है. माउंट यानी कंचनजंगा. इस दिन सिक्किम के लोग माउंट कंचनजंगा की पूजा करते हैं और उनसे सिक्किम की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं. यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने में 15वें दिन मनाया जाता है, जो अगस्त या सितंबर की शुरुआत में होता है. इस त्योहार में लोग क्या करते हैं, शानदार पोशाक पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और रंग बिरंग के मुखौटे लगाते हैं. क्या करते हैं, रंग बिरंग के मुखौटे लगाते हैं. इस तरह से इस त्योहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं और अनेकों प्रकार के मुखौटे और रंग बिरंग पोशाक पहन करके नाचते गाते हैं. इस तरह से त्यौहार मनाते हुए बच्चे अपना और सभी इस तरह से मनोरंजन करते हैं. ये हमारा त्यौहार ख़त्म हो गया. अब यहाँ दिया है द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन. बच्चों हम उच्चारण भी आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आएगा उनको उच्चारण दिखाना बहुत ज़रूरी है. जो भी मैं पढ़ाई हूँ फेस्टिवल से, यहाँ फूलदेई फेस्टिवल है. दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. यहाँ फ्ला आधा फ लपराकंतरा ला व यहाँ सौ पर आसमानी रहा है, यानी इनको मिला देने से फ्लावर्स हो जाएगा. दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग. चिल्ड्रेन कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स. यानी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इकट्ठा करते हैं बच्चे. दे गो टू द हाउसेज नियर दियर होम. अपने घर को फूलों से सजाते हैं. दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स. समटाइम दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप. The elders give them right and जयगरी. इस तरह से हमारा पहला त्यौहार खत्म हो गया. अब आया शरद पूर्णिमा. शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट. इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ आश्विन, सितंबर अक्टूबर. The weather is generally pleasant. Sharad Purnima marks the Indian of the monsoon season. इसके बाद आदि पेरुक्कू जो है, आदि पेरुक्कू इज अ तमिल मानसून फेस्टिवल. इट इज सेलिब्रेटेड इन द आदि मंथ जुलाई अगस्त. पीपुल वर्शिप द रिवर कावेरी. फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट. यानी जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो कावेरी नदी से प्रार्थना करते हुए अपने अच्छे फसलों की प्रे करते हैं. अब यहाँ है पंग लाबसोल. यहाँ पंग लाबसोल आधा ल है, हपराक मंत्रा हा, आधा ब सपरोक मंत्र सो अल. पंग लाबसोल. Pang Labsol is festival of Sikkim. This festival is celebrated in the month of August or September. Empty Kanchenjunga is
worshipped on this day. Mt. Kanchenjunga is considered as a protector by the worshippers. People dance and celebrated unity. अब जो नीचे आपका दिया था इसको भी मैं उच्चारण के माध्यम से लिखी हूँ। यहाँ है द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन. इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया ये सारा उच्चारण। अगर आपको धीरे धीरे लिखना है तो देख देख के रोक रोक के आराम से इसको धीरे धीरे नोट्स कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में दिया है आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव अबाउट अ folk song or local song that they used to sing in their village. Ask them when they used to sing it. Also learn the song in your mother tongue and then sing it in the class. Present it in the following format. ये आपको फॉर्मेट यानी नमूना दे दिया है। माई नेम इज, माई नेम इज क्या लिखना है? माई नेम इज तो हम लिखते हैं माई नेम इज, जो आपका नाम होगा, जैसे मान लो कि अंशु है, ANSHU, माई नेम इज अंशु। माई पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेम ऑफ विलेज, गांव का नाम लिखना है, और स्टेट यानी राज्य लिखना है। तो हम वाराणसी से है तो वाराणसी VARANASI वाराणसी, और स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश है, UTTAR उत्तर प्रदेश। तो हम यहाँ पर पूरा नहीं अट पाएगा तो प्रदेश के लिए हम शॉर्टकट में क्या लिख देंगे बच्चों? हम शॉर्टकट में लिख देंगे यूपी। क्या लिख देंगे? यूपी लिख देंगे, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अब माई मदर टंग, ये मेरी मातृभाषा क्या है बच्चों? तो हम लिख देते हैं हिंदी, HINDI। यहाँ पर हो गया माई मदर टंग इज हिंदी। द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज क्या है? यूनिटी है, एकता बनाना है, UNITY, UNITY, यहाँ यूनिटी हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये क्लास 2 का पूरा टोटली कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? क्लास 1 का टेक्स्ट बुक कुछ बचा हुआ है उसको डालेंगे। ये हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मृदंग टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 2 ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना ताकि उसका भी हेल्पफुल हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।